So students, how are you? Very fine. So now we are discussing today about friction, continuing the topic of friction. So here we want to see that if a body is moving on a horizontal rough surface, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रही है with certain velocity. So how much distance the body will travel before coming to rest? तो हम ये देखना चाह रहे हैं. क्या देखना चाह रहे हैं? To calculate distance traveled by body on rough horizontal surface. Rough horizontal surface. So क्या क्वेश्चन है कि this is rough surface and now we are considering body placed at this very position, that is at this position A, right? So now let us say this body is moving with velocity v and the point is this A. So we want to see that after traveling how much distance the body will come to the position of rest. कि जैसे तो अब कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? अब दैट मीन्स इसमें सबसे पहली बात ये है कि जब बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो वो क्यों रेस्ट में आई? याद है ये तो हमने इवन जब न्यूटन फर्स्ट लॉ किया था तो भी हमने बात की थी ना कि बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, but that body should remain with that velocity only, that should continue to move with that velocity. आप बेटा इस फर्श के ऊपर किसी बॉडी को मूव करवा दो तो क्या वो बॉडी कभी रेस्ट में नहीं आती? आती है. क्यों आती है? बिकॉज रिटार्डिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड दैट रिटार्डिंग फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो वही बात हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर सकती है when it is moving on rough horizontal surface. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? That will depend upon the retarding force. तो अब इसमें हम ये लेंगे कि as body is moving in the forward direction, तो force of friction will act in the backward direction. So force of friction between this block or the body and horizontal surface is acting in backward direction. तो अब ये force of friction क्या है? You know that mu is the coefficient of friction which is F upon R. और अब आप देखिए कि ये बॉडी जो आपने ले ली इसका वेट mg vertically downward है, then R reaction is in the upper direction. So that means R is equal to mg. It means that F force of friction is given by mu mg. तो इसका मतलब पहली चीज कि whenever you are considering the motion of body on a horizontal surface, in that very case the force of friction which you will consider, that is mu times mg. Now force is mass into acceleration, तो ये आपके पास आ गया, m से m कट गया, तो that means A is equal to mu g. So this is retardation. तो ये आपके पास क्या है? Retardation which is acting on the body, due to which velocity of the body will go on reducing. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया. तो now we can take simply formula, that is v square minus u square is 2as. Now the final velocity is 0 and initial velocity is v and this a is equal to mu g. और यहाँ पर मैं अब ये नेगेटिव का साइन लगाऊंगी बिकॉज व्हेन आई एम टेकिंग दिस फॉर्मूला तो रिटार्डेशन है तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अब इसमें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर इज 2 म्यू जी एस
That means s distance traveled will be given by v square upon 2 mu g. So it means that the distance traveled by the body will depend upon the two factors. One is initial velocity of the body and second is coefficient of friction between the two surfaces. जो दो surfaces आप ले रहे हो उनके बीच में coefficient of friction की क्या value है. तो इस तरीके से ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया जो कि आप डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में लगा सकते हो. अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हम करने लगे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट नाउ. अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम इसमें अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन acting on a body. Acceleration acting on a body moving down the inclined plane. Moving down the inclined plane. कि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी. अब ये देखिए, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन. ये इंक्लाइन प्लेन है ए बी और ये क्या है? थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अब यहां पर आपने एक बॉडी ली, ठीक है. तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं, पहली बात तो अब इसमें हमने ये देखनी है कि वाई, फ्रॉम वेयर एक्सेलरेशन विल कम. हमने तो सिंपल एक बॉडी ली है विच इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो एक्सेलरेशन कब होगी? व्हेन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. अब एक्सटर्नल फोर्स तो कोई अप्लाई की नहीं है, तो कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स सी कि भी कौन कौन सी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं. हियर यू आर कंसीडरिंग ms, mass of body, which is placed on the inclined plane. Mass of body placed on an inclined plane, and theta will be angle of inclination. तो इसमें देखिए बेटा, weight of the body mg is acting vertically downward. ठीक हो गया. Now we are taking this point. This is normal to this inclined plane. तो ये एंगल इसमें क्या आ गया? थीटा. क्योंकि ये लाइन देखो, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. तो अब आप जब इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे? अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब जिस तरह थीटा एंगल बनता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस. तो ये बन गया mg cos ऑफ थीटा. इस तरफ आ गया mg sin ऑफ थीटा. अब ये बॉडी, ये जो ब्लॉक है, ये इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर टिका हुआ है. जब टिका हुआ है तो दैट मीन्स इसका जो रिएक्शन है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है ना, वो ऊपर को है. तो इसका मतलब R is equal to mg cos of theta. बैलेंस हो गया. There is no force in the direction perpendicular to the plane. अब कौन सी फोर्स बची है इसमें? mg sin theta. And this force is moving in the downward direction. तो that means इस वजह से बॉडी जो है इसकी मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो यहाँ तक अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी किया था. अब बेटे आगे फर्क क्या आएगा कि वेदर दिस इंक्लाइंड सरफेस इज रफ और नॉट. अब मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मैं उसमें कहती हूँ एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट आस्किंग सेइंग कि वेदर इट इज हैविंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. तो यहाँ क्या आएगा? रफ इंक्लाइन प्लेन. क्या आना चाहिए? रफ इंक्लाइन प्लेन.
कि भाई जब रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी मूव कर रही है तो दैट मीन्स कि जैसे ही बॉडी की मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगी देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और मैंने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ के लिखा बिकॉज बॉडी इज इन मोशन, तो इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो प्लीज सबसे पहले मेरा एक पॉइंट याद रखना कि जैसे mg sin theta is the force due to which body tends to move in the downward direction, तो बच्चे acceleration produced on the smooth inclined surface, कि अगर surface smooth है तो acceleration क्या होगी, g sin theta। अगर surface smooth है और अगर surface rough है तो उसमें ये force of काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। तो अब आप इसमें क्या लोगे कि म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय आर, विच मीन्स एफ के इज म्यू के टाइम्स आर एंड आर इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो दैट मीन्स पहली चीज इसमें ये वाली आ गई कि एफ के जो है किसके बराबर है, म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ नेट फोर्स acting on body in downward direction, in downward direction। तो क्या बन गई ये, कितनी होगी बेटा ये, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। सो इट विल बी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा, यही बनेगा ना एफ के की जो वैल्यू है। सो इट मीन्स दैट इट विल बी एम जी, अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। और अब आप देखिए ये नेट फोर्स थी, तो नेट फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या बन गई बच्चे, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा, जो मैंने जी कॉमन निकाल, ठीक है। तो ये आपके पास आया कि हाउ मच एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग डाउन द रफ इंक्लाइंड सरफेस। अब स्पेशल केस ले लो, स्पेशल केस क्या ले लो कि when no force of friction is acting, mu k is zero, or you can say when you are considering the surface to be the smooth surface, तो जब surface smooth है तो coefficient of friction आएगा नहीं। In that very case what will be A? In that very case A will be equal to G sin थीटा। तो इसलिए अब आपने सबसे पहली चीज इसमें क्या सीखी कि when you are considering the body is moving on the inclined surface, to the force due to which body tends to move in the downward direction along the inclined surface, that force is one of the component of the weight and that is mg sin theta, जो पहली चीज आ गई, ठीक होगी बात। अब उसके बाद इसमें ये आता है कि भाई आपके पास उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये बनेगी, और इसमें फिर हम ये स्पेशल केस ले रहे हैं कि अगर सरफेस स्मूथ है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तब आपके पास क्या बनेगा। तो आई थिंक कि आपको इस चीज़ की पूरी क्लैरिटी जो है वो हो गई है कि आपने इसमें किस तरीके से इसको लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड दैट वी वांट टू डिस्कस, दैट इज क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहें, वर्क डन ऑन द बॉडी
to move up the rough inclined surface. Rough inclined surface क्या मीनिंग है कि ये देखिए, ये आपके पास इंक्लाइंड सरफेस बन गया, वही है, ये बॉडी रखी, अगेन weight of the body mg vertically downward, this angle theta, so this component is mg cos of theta and this is mg sin of theta और this is r. तो ये आपने जैसे अभी मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि नो डाउट ये जो बॉडी है इसकी कोशिश किस तरफ को मूव करने की है, in the downward direction due to this component of the weight that is mg sin theta। पर क्या कि हम कह रहे हैं कि नहीं, बॉडी की मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी हैज टू मूव फ्रॉम दिस पोजीशन A to this position B through distance s। s डिस्टेंस से बॉडी मूव कर रहा है अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस s। तो अब क्या करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन ऑन द बॉडी, उल्टा उल्टा खींचना है ना, अब आपको बांध के रखना पड़ता है। अब बात सुनिए, अगर बड़ी सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने वीडियो ऑन की और अगर आपको वो वीडियो पसंद नहीं आई, आपका इंटरेस्ट नहीं बना, 1 मिनट में उसको बंद करके चले जाओगे। वी हैव टू डू वर्क कि बड़े ध्यान से उसमें कॉन्सेप्ट डालें और उसको इजी वे से एक्सप्लेन करें ताकि आपका इंटरेस्ट बने उसमें, आप उसको व्यू करो, अंडरस्टैंड करो। तो बॉडी की मोशन इस तरफ को, बॉडी की जो है इंक्लिनेशन मूव करने की इस तरफ को है, जाती वो इस तरफ को जाना है, लेकिन मूव कहाँ कर रही है, अप कर रही है। सो इसका मतलब ये हुआ ना कि वी हैव टू डू सम वर्क। तो अब अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेचुरली काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम इसमें सबसे पहले क्या कहेंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का तो सीधा हिसाब है कि जिस तरफ को बॉडी की आपने मोशन की डायरेक्शन लेनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना है। इसलिए ये क्या बनेगी, mg sin theta plus fk, it will be mg sin theta plus mu k mg cos of theta, क्योंकि फिर वही देखोगे बेटे, F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और R आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज म्यू के, तो अब आपके पास F के आ गया म्यू के इंटू R, और R आपके पास इसमें क्या है, mg cos of theta, तो इसलिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन गई। सो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and you want that body should move in the upward direction. So amount of work required to move body from position A to B, from position A to B through distance S, through distance s। तो W क्या होगा, तो W in this case will be mg sin of theta plus mu k mg cos of theta into s। This will be the total amount of work required। कि बॉडी को A से B तक लेकर के जाना है
तो कितना काम करना पड़ेगा, बॉडी के ऊपर काम करना होगा, एंड दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे को है, ऊपर को है। तो बच्चे आप ये लिखते हो W इज Fs cos ऑफ थीटा, तो इसमें cos 180 डिग्री आ गया, तो नेचुरली नेगेटिव साइन मीन्स वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो ये आपके पास इसमें आंसर बनेगा कि दिस मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द रफ इंक्लाइन सरफेस। और इसमें अब ये एक तो इस तरीके से आ गया, इसमें दूसरी चीज बेटे आपसे जो पूछी जा सकती है वो क्या है, कोई प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नेट फोर्स आई आपके पास कि जब बॉडी की कोशिश अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की है, बॉडी की ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब बॉडी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है तो ये फोर्स क्या एक्ट करेगी, दिस फोर्स विल एक्ट एज रिटार्डिंग फोर्स। जैसे सपोज कर लो मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रही हूँ, पता है कैसे, कि ये एक बॉडी मूव कर रही थी, राइट, इट वॉज मूविंग विद वेलोसिटी v, और यहाँ पर ये इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर चलेगी, यहाँ पर ये इस इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करना शुरू कर देती है। तो आप ये बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये रुकेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स इन दैट वेरी केस आपके पास ये क्या बना कि ये अब व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तभी तुमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, ठीक है। तो आपके पास ma इज mg साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के mg कॉस ऑफ थीटा, एमसीएम कैंसिल हो गया तो a विल बी g साइन थीटा प्लस म्यू के g कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें ये जो a आपके पास बन गया, तो ये a बेटा आपके पास क्या बना, दिस a इज रिटार्डेशन। ये a आपके पास क्या आई है, ये a आपके पास आई है रिटार्डेशन, ठीक है ना, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो अब क्वेश्चन ये था कि बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v क्या करती है, एंटर्स ऑन द inclined surface, how much distance will be traveled before coming to rest, before coming to rest। तो कैसे देखोगे, अगेन 0 माइनस वी स्क्वायर इज 2g साइन थीटा प्लस म्यू के g cos ऑफ थीटा इंटू एस विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यू कैन कैलकुलेट एस। अरे फॉर्मूला तो एस का वही बनना है ना जो पीछे किया था। एक्चुअली एस का फॉर्मूला क्या है, एस का फॉर्मूला तो बेटा तुम्हारे पास यही है, वी स्क्वायर बाय 2a, वेयर a इज द रिटार्डिंग फोर्स। जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, तुम्हें कॉन्सेप्ट पे जाना है। जब तुमने डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉडी एक v वेलोसिटी से आ रही है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल अंडर रिटार्डेशन, तो s इज v स्क्वायर बाय 2a, ठीक है ना। तो a इसमें क्या है, रिटार्डेशन है। अब जब हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या थी, म्यू टाइम्स g, और जब ये इंक्लाइन सरफेस पे है तो रिटार्डेशन की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो प्लीज इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। एक तो हमेशा इसमें ख्याल रखना है कि वेदर द सरफेस इज रफ इंक्लाइन सरफेस और स्मूथ इंक्लाइन सरफेस, दोनों में एक्सलेशन डिफरेंट होगी। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि वेदर बॉडी इज मूविंग अप द रफ इंक्लाइन सरफेस और डाउन द इंक्लाइन सरफेस। सो आई थिंक कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और इसके बाद
आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो you will get the notes of all these points. So now naturally, thank you. So please subscribe the channel, like and share. Thank you.